پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار انتہائی اہمیت کا حامل پیغام لے کر چین روانہ ہوئے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا چین مان جائے گا؟ اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ کنڑ سے شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں، رد عمل افواج پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ نورستان میں سبز ہلالی پرچم لہرانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے، اور اس سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ لندن میں کچھ اہم ملاقاتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں واہ خان کے حوالے سے خصوصی بات کی گئی ہے۔ پس پردہ بہت سی چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 31 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے میزبانی کی، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود تھے۔ ایجنڈا مقصد یہی تھا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ایران جنگ کی صورتحال کو کس طرح سے جنگ بندی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جہاں پر ہم نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ معلومات یہ شیئر کی تھی انٹرنل ذرائع کے حوالے سے، کہ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی مسلم ممالک کو، بالخصوص خلیجی عرب ممالک کو یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جس میں یہ تاثر جائے کہ پاکستان کسی مسلم ملک کے اگینسٹ آ گیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں۔ دفاعی معاہدے اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ اسپیسیفک کچھ کنڈیشنز ہیں ان کی، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کسی مسلم ملک کے اگینسٹ آ جائے گا، پاکستان اس فارمولے کے اوپر رضامند نہیں ہوگا کسی بھی صورت۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی طرف سے اس پالیسی کی تکرار کی گئی یا اظہار کیا گیا، بلکہ جو دیگر جو ممالک تھے مسلم ممالک، انہیں بھی اس بات کو ان تک یہ بھی پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اس میدان سے دور رہیں۔ اگر جنگ بندی کے حوالے سے اگر آپ اپنا جو کردار ہے وہ مثبت ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم خود کا دامن اس جنگ سے بچائیے، ورنہ آپ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل طے ہے، لیکن اس حوالے سے بہت سی ایسی مثبت باتیں بھی چل رہی تھی کہ ممکن ہے کہ پاکستان یہ جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے، جنگ بندی کی طرف معاملہ چلتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور ہمیں بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹس کل ہی کے دن ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی کہ پاکستان کے اندر ہونے والے مذاکرات کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے میں دلچسپی کا اظہار رکھتا ہے۔ پیغام رسانی ضرور ہو رہی ہے، یعنی کہ ظاہر امریکہ پاکستان ایران، اور ایران سے پھر پاکستان سے پھر امریکہ، یہ ایک چین تو بن چکی ہے جہاں سے پیغام رسانی کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن مذاکرات، جنگ بندی کی طرف معاملہ، ابھی تک ایران جو ہے وہ اس بات کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ایران اگر مذاکرات کرے گا تو اپنی کنڈیشن کے مطابق کرے گا، لیکن مذاکرات کب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، یہ ایران ہی طے کرے گا، کوئی اور فریق طے نہیں کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ بہت جلد ہم ایران کے ساتھ ایک نئی ڈیل کر لیں گے، لیکن اگر یہ جو ڈیل ہے یہ جلد نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم ایران کے جو انرجی سیکٹر ہیں انہیں ہم بڑی شدت کے ساتھ نشانہ بنائیں گے۔ مارکو روبیو کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران مانے یا نہ مانے، لیکن آبنائے ہرمز تو ہے، باہر ہر صورت اس کو کھولنی ہی پڑے گی، چاہے جنگ بند بھی ہو جائے یا جنگ جاری و ساری بھی رہے۔ آبنائے ہرمز کا کردار اس کے اندر مزید نمایاں ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور اسی والے سے ہم نے چین کے والے سے بھی کچھ بات کرنی ہے آبنائے ہرمز کو لے کر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانوی اخبار بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران کی بڑی خواہش بنتی جا رہی ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید طوالت دے دے اور اتنی لمبی کر لے کہ جیسے کہ عراق کی صورتحال تھی، اور اسے ہوگا یہ کہ ایران کی جو امریکہ کی جو معیشت ہے، وسائل ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انگیج کیا جا سکے اور ضائع کیا جا سکے۔ یہ تو بہت سی چیزیں ایسی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب آج ہی اس نقطے کے اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چین میں کیا پیغام لے کر گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے چین سے پہلے یہ خبر غیر اعلانیہ طور کے پر سامنے آئی کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے آدھی رات کو غیر اعلانیہ دورہ کیا چائنا کے سفارت خانے کا۔ اب ایک دم سے خبریں سامنے آئی کہ یعنی کہ کل کے دن کل شام میں تقریباً 3-4 بجے کے بعد پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا جیو نیوز کی طرف سے اس خبر کو اعزاز سید جو صحافی ان کی طرف سے بریک کیا گیا، اور یہ جو دورہ ہوا یعنی کہ پرسوں رات کی بات ہے کہ آدھی رات کو جا کے صدر مملکت جو ہے وہ چائنا کے سفارت خانے میں کیا کر رہے تھے، ایسا کون سا معاملہ جو ہے وہ درپیش آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی چین جائیں گے، اور جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یقیناً یہ اطلاعات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، چائنا کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے اندر چین کا کردار کیوں اہمیت کا حامل ہوتا ہوا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے اس وقت چائنا اور رشیا کا کردار ایران جنگ کے اندر بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے، کلیدی کردار ہے۔ چائنا اور رشیا بہرحال یہ ممکنہ طور کے پر یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کنٹرول بھی ہو، لیکن ایک طویل جنگ بھی چھڑے تاکہ زیادہ سے زیادہ امریکہ کو اسی خطے کے اندر انگیج کیا جا سکے اور اس کی وسائل اور اس کی معیشت کو شدید قسم کا دھچکا پہنچایا جا سکے۔ اور پھر اس سب سے بھی بڑھ کر جو سب سے زیادہ فائدہ صورتحال کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ چائنا کو
को नज़र आता है फ़ायदा आबनाए हुर्मुज़ को लेकर, क्योंकि ईरान की तरफ से जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया गया है उसको लिंक किया गया है चाइना की करेंसी युआन के साथ। और ईरान की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो बहरहाल सूरत हम किसी भी सूरत जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को तो ओपन नहीं करेंगे, और फिर आबनाए हुर्मुज़ से जिस जहाज़ ने गुजरना है उसको चाइना की करेंसी युआन में अदायगी करनी है। और उसी सूरत में वो जो तेल बरदार जहाज़ है या LNG का जहाज़ है या फिर खाद पर मुश्तमिल जहाज़ है, जो भी जहाज़ है, तजारती जहाज़ है, उसको यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। अब पाकिस्तान जो है चूँकि वो वाशिंगटन के साथ भी राब्ते में है, तो इसीलिए आबनाए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर डेडलॉक आ रहा है और चाइना भी इसके अंदर स्टेक होल्डर है। अब पाकिस्तान जो है वो चाइना में गया है और चाइना के सामने यही चीज़ें रखी जा रही हैं कि ईरान के ज़रिए मेहरबानी करें ये पैगाम पहुँचाया जाए, और चूँकि आप भी इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं तो आबनाए हुर्मुज़ वाले मामले के ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर ज़रा सी को लचक दिखाएँ और इससे बाहर निकलें ताकि आबनाए हुर्मुज़ खुले, जैसे कि पहले इसका मौजूदा पुराना स्टेटस था उसी स्टेटस के ऊपर आए और जो जंगबंदी वाला मामला है वो उस तरफ जाता हुआ नजर आए। अब देखना यह है कि चीन इसके ऊपर रजामंद होता है या नहीं होता है, क्योंकि चीन ने ये कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर गुफ्तो शनीद या डायलॉग हो सकते हैं। अब डायलॉग किस लिए हो सकते हैं? अगर आपने मुकम्मल तौर के ऊपर खोलना है फिर तो डायलॉग नहीं बनते, लेकिन यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि चीन यहाँ पर कोई डील चाहता है ईरान के साथ। अगर वो अपनी तेल की तजारत करता है, किसी और मानव में तजारत करता है, तो शायद चीन ये फिर ये चाहेगा कि उसको वो जो आज़ादी है, चाहे उसके ऊपर पाबंदियों लगने वाला जो एक तलवार लटकती रहती है अमेरिका की तरफ से, फिर उसको पीछे हटाना पड़ेगा ताकि ईरान और चाइना खुलकर तिजारत भी कर सकें। और आबनाए हुर्मुज़ को फ़िलहाल एक ऐसा पॉइंट रख लिया गया है जो आगे मुज़ाकरात में या निगोशिएशन में एक बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन का पैगाम यही लेकर गया है ताकि आबनाए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर अब ईरान को पीछे हटाया जा सके, उनके मौक़िफ़ को तब्दील किया जा सके। अब चीन बाहर राज़ी होता है या नहीं होता, चीन रज़ामंद होगा तो ज़ाहिर है ईरान को भी पैगाम पहुँचाया जाएगा, और उस सूरत में देखना ये होगा कि ईरान भी इसके ऊपर रज़ामंद होता है या नहीं होता, क्योंकि ईरान की जो सख्त गिर जो क़यादत है, बिलखुसूस ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, उनकी तरफ से तो वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया गया है कि आबनाए हुर्मुज़ किसी भी सूरत अब पिछले स्टेटस के ऊपर वापस नहीं जाएगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और या सालसी या पैगाम रसानी का किरदार है वो किस हद तक कारगर साबित होता है या नहीं होता। अब आ जाइए अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर। अफ़गानिस्तान के अंदर से इतलात सामने आ रही थी, जैसे जंगबंदी की कुछ इतलात आई कि जंगबंदी ख़त्म हुई है, ईद के बाद वाला जो ब्रेक था वो ख़त्म हुआ। कुनड़ से अफ़गानिस्तान साइड से पाकिस्तान के ऊपर मार्टर गोले जो है इनका इस्तेमाल किया गया, और कुछ वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिविलियन आबादी है वहाँ पर ये मार्टर गोले आकर गिरे हैं और ज़ाहिर इंसानी जानों का ज़ियाब भी हुआ है। इसके रद्दमल पाकिस्तान की तरफ से भी कुनड़ हमलों को शदीद किस्म का जवाब भी दिया गया है, और कुछ जो रिपोर्ट्स और चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं नूरिस्तान के हवाले से, ये डिटेल्स और ये तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से मैं चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में पाकिस्तान की फोर्सेस ने मुबैना तौर पर एक तस्वीराती मकाम पर कब्जा कर लिया है। सियासी कारकुनों और मकामी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई मुतनाज़ा ड्यूरल लाइन के करीब हुई है, जिससे कमदेश और बरगे मताल अजला तक जाने वाले अहम ट्रांसपोर्ट रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की 29 मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाकिस्तान की पिछली कार्रवाइयों जैसे पख्तिका के गुडवाना इनकलेव में 32 मरबा किलोमीटर पर कब्जा और फाइनेंसिंग का तसलसल है। मकामी कारकुनों का कहना है कि तालिबान इंतजामिया इन रास्तों को दोबारा खोलने में नाकाम रही है, जिससे नकल व हरकत और तिजारत मुतासर हो रही है। तालिबान की तरफ से इन रिपोर्ट्स की तरदीद की गई है कि 28 मार्च को तालिबान की 201 खालिद बिन वलीद कोर के हुकाम ने कहा कि कमदेश और बरगे मातल या मताल में सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पोजीशन में बरकरार हैं और कोई भी कब्जा पाकिस्तान की फोर्सेस ने नहीं लिया। तहाँ पाकिस्तान की जानिब से इक़दामात कलदम TTP समेत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ का हिस्सा बताए जा रहे हैं, जो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। पहले हम इसके ऊपर बात थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लंदन में अहम मुलाकातें हुई हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। इस हवाले से मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं। कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि नूरिस्तान वाली साइड के ऊपर मुकम्मल पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, और कुछ वीडियोस भी हम देख रहे हैं। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं जो अफ़गान अमूर को बाकायदगी के साथ कवर करते हैं। उन सहाफ़ियों के मुताबिक पाकिस्तान ने नूरिस्तान के अंदर जाकर कोई ऐसा इलाका कंट्रोल में नहीं लिया, अलबत्ता यहाँ पर जो एक अहम शाहरा थी और यहाँ पर एक चेक पोस्टें थी अफ़गानिस्तान साइड की, जहाँ से पाकिस्तान को ये कंसर्न रहता था कि ये भी जो चेक पोस्टें अफ़गान तालिबान की हैं ये भी
इस्तेमाल होती हैं, यहाँ से भी कलअदम टीटीपी या आम दुश्मन सरहद अबूर करके उनकी सहूलतकारी की जाती है, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। पाकिस्तान ने उस अहम शाहराह को कट किया है और जो यहाँ पर आसपास अफगानिस्तान साइड के अंदर जो चेक पोस्टें थीं उन्हें तबाह किया है और अफगान तालिबान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और इस पूरे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, तस्वीराती मकाम था, इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, जैसे गुडवाना इनक्लेव के अंदर किया गया है। लेकिन वो इसलिए भी बड़ा है कि वो तो 32 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर की बात की जा रही है कि वो तो अफगानिस्तान के अंदर जाकर है ना, ये तो बिल्कुल सरहदी पट्टी की बात की जा रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। लेकिन सरकारी सतह के ऊपर बाहर अभी तक इसका कोई मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं है पाकिस्तान साइड का, लेकिन अफगान तालिबान इसकी तरदीद कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आ जाइए, लंदन के अंदर कुछ मुलाकातों का जिक्र किया जा रहा है। कुछ आज़ाद जो ज़राए हैं वो ये बात कर रहे हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की 26 मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुसद्दक़ा ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस वाह खान पर कब्जे की प्लानिंग कर रही है ताकि कलअदम टीटीपी अनासर को रोका जा सके और वसी एशिया तक रसाई हासिल की जा सके। वाह खान कॉरिडोर अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है और ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक अहमियत भी रखता है। और ये बातें मार्च 2026 के तनाज़े के तनाज़ुर में सामने आई हैं, जबकि पिछले साल 2025 में भी इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर चुकी थी, जिनकी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद भी कर दी थी। अब इसमें यह देखिए कि वाह खान के हवाले से कुछ ज़राए मुमकिन तौर के ऊपर या मुबैना तौर पर ये बातें तो कर रहे हैं कि लंदन में शुमाली इत्तेहाद से बातें हुई हैं, पाकिस्तान की उनके हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। लेकिन अभी जो हमारी असेसमेंट के मुताबिक जो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो शुमाली इत्तेहाद के ऊपर मुकम्मल एतमाद कर सके। एतमाद का फ़ुक़दान है, गुफ्त शनीद ये बातें शायद हो सकती हैं, सामने आ जाए इसके ऊपर वज़ारत ख़ारजा की जब कोई स्टेटमेंट सामने आएगी। मुमकिन तो यही है कि ऐसे मामलात की अव्वल तो कोई स्टेटमेंट सरकारी सतह के ऊपर सामने तो नहीं आती है, लेकिन अलबत्ता जिस हद तक सरकारी सतह के ऊपर या कोई ज़राए के वाले से भी खबर हमारे सामने आएगी तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अलबत्ता फ़िलहाल सिनेरियो ये है कि शुमाली इत्तेहाद को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना भी है, लेकिन साथ ही कंसर्न भी है। और बिलखसूस वाह खान की पट्टी इंतहाई अहमियत की आमिल है, लेकिन वाह खान की पट्टी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के हवाले से शुमाली इत्तेहाद का साथ होना या ना होना शायद उतना मैटर नहीं करता जितना ताजिकिस्तान का इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक पेज पर होना करता है। और इसीलिए बात ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक अहम शख्सियत जो है वो ताजिकिस्तान भी रवाना हो सकती है, ताकि इस मामले के ऊपर एतमाद में उन्हें लिया जा सके और ताजिकिस्तान को कन्विंस किया जा सके। अब देखना यह है कि पहले भी 2025 के अंदर भी ऐसी खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है वाह खान को अपने कंट्रोल में लेने की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से तरदीद कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से दोबारा वाह खान के हवाले से बातें चलना शुरू हो गई हैं। इसमें चलते चलते वीडियो के अख्ताम पर आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत से दोस्त ये भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आलमी सतह का कोई प्रेशर नहीं आ सकता कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान साइड की एरियाज़ को इसी तरह अपने कंट्रोल में लेता रहा। तो देखिए, ये तो मामला अफगानिस्तान बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अव्वल तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है, जो पाकिस्तान कहता है कि बॉर्डर है, अफगानिस्तान तो उसको मानते ही नहीं। अफगानिस्तानी कहते हैं कि ये आर्जी तौर के ऊपर एक लाइन है जिसने आज नहीं तो कल हट जाना है, एक ड्यूरल लाइन वो इसको कहते हैं, फर्जी करखा उसको वो कहते हैं। तो पाकिस्तान फिर इसी बयानी का फ़ायदा भी उठा रहा है कि जब आप इसको बॉर्डर मानते ही नहीं है, आप इसको कहते हैं कि फर्जी करखा है जो आज नहीं तो हट जाना है, तो फिर इससे क्या मसला है? फिर हमें मज़ीद अंदर तक भी जाना है, वहाँ जाकर जहाँ जहाँ भी हम लगाते नहीं, क्योंकि आपने तो वैसे इंटरनेशनल बॉर्डर तो तस्लीम करना नहीं। तो जहाँ पर हम अपनी ताकत के बलबूते पर जिस हद तक भी अपना कंट्रोल जमा सके और स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है इन एरियाज़ के अपने कंट्रोल में कर सके तो हम कर लेंगे। ना ही सिफारती सतह के ऊपर ना ही आलमी सतह के ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है। और उसकी वाज़े जो मिसाल है अफगानिस्तान का अपना एक नैरेटिव है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।